Hello everyone. Hello everyone. So this is me Prerna Bajaj and today we are going to have a live session wherein we talk about that how can budding doctors talk like a clinician and how can we focus on our diagnostic skills. So we have a wonderful speaker with us today and she is none other than Dr. Akshara Arora. So I'm just waiting for ma'am to join and then we'll start with the live session. Hello, keep joining. This will be a wonderful session for all the doctors and budding doctors. Hello, ma'am. Hi, doctor. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm good. I'm good. Good evening. और बताइए, how has Good your day evening, been? ma'am. So, maybe begin with the, sorry, मैम Yes. आपकी ना आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी बीच में. मेरी कट रही है. Even your video is a little blurry सी. आपके साइड से Lagging? तो आप अभी better है. थोड़ा blurred था, Okay, pixelated आ रहा था. अभी it's better. अभी better है. मेरी आवाज भी okay, better है. okay. Yes, yes, yes. All right. Yes. So, shall we You have begin or such shall we a wait for some lovely, time? charming face. Thank you. So do you. You're very beautiful. Thank you. Same to you, I ma'am. really liked your profile. So, thank you, ma'am. Yes. So let me know, shall we wait So or shall she we is, start? ma'am, let me do the honor. Let me Okay. introduce you to the participants. Okay. So she is none other than Dr. Akshara Arora, and she is a wonderful homeopath. And I also read that you are a diet and nutrition expert as well. Yes. So, ma'am has been serving and she has been taking homeopathy to an unprecedented scale, which I really, really admire that our fields people usually do not consider with passionately following this in fu for future as well. But the way you have been promoting it, I saw your page and I'm really, really adorned by it. Thank you. So, so ma'am is going to enlighten us that how one can think like a clinician and how I and the fellow participants can improve their diagnostic skills. So over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you, and thank Vijayan for having me here for this live session. Yes. And look, we're still very young, so we have a lot to learn from our books, from our clinical practice, day-to-day practice, from our seniors. But जितना भी सीखा है अभी, because Hmm. I think the young generation can correlate with us a little more than they can with the experienced homeopaths. उनका way of Senior practicing ones. is different, and वो उन्होंने अलग एक टाइम देखा है अपने लाइफ में प्रैक्टिसिंग का. अभी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसका जनरेशन चेंज हो चुका है. उनके क्वेश्चंस Hmm. अलग होते हैं. उनका पहले से जो उनकी खुद की नॉलेज होती है, अवेयरनेस जो होती है, वो डिफरेंट लेवल पे है इस पॉइंट पे. तो उस सब को Hmm. देख के क्लिनिक में बैठना, एक क्लासरूम में बैठना, एक मेंटोर के अंदर ओपीडी आईपीडी के अंदर बैठना, और एक क्लिनिक में बैठना. आप सड़क पे बैठे हो, यू आर आउट देयर वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट. तो दैट इज व्हाट एवरी डॉक्टर शुड नो. आप सिर्फ होम्योपैथ नहीं हो, आप एक डॉक्टर हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी Hmm. इवन बीएचएमएस ग्रेजुएट शुड अंडरस्टैंड कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है तो आप एक जनरल Hmm. फिजिशियन हो.
यू आर अ हम्म डॉक्टर जो फर्स्ट लेवल पे पेशेंट्स को स्क्रीन करेगा। हम्म आप पेशेंट को बताओगे कि आप हमसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, या आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, या आप इमरजेंसी केयर में किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओ, ठीक है, हम्म या आप कल्मिनेटिव एक ट्रीटमेंट प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर सकते हो कि हमारे साथ भी आप जुड़ के रह सकते हैं। एंड आपको इंटीग्रेटेड मेडिसिन, आपको मॉडर्न मेडिसिन साथ में चाहिए। So we do need a combination of हम्म two things, or we need naturopathy for them, or we need Ayurveda for them, or we need Unani other practices for supportive them. care as well. Yes, yoga. It's very important to know where to draw the line and what हम्म to say to the patient. Every word you speak in your clinic, हम clinician की बात कर रहे हैं, तो every word you speak in your clinic holds a lot of accountability and weightage. First things हम्म first is this. Secondly, today's topic is, so I'll keep glancing at my register also. I've written down some notes so we don't miss anything. Okay, so think okay. like a clinician, sharpening diagnostic skills in everyday practice. And जो हम ऑर्गेनन में पढ़ते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। कहानी उसके आगे, जैसे बोलते हैं ना, सीक्वल सीक्वल स्टार्ट होता है हम्म कि हाँ, पेशेंट जैसे ही वॉक इन करेगा आपके गेट से, आपको तभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देना। जब वो वेटिंग में बैठा है, आपको अपने कान खुले रखने हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सेकेंडली, व्हेन द पेशेंट सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है, उसका बिहेवियर क्या लग रहा है, उसके आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स सब देखना पड़ता है। दैट इज सेम एज व्हाट हम ऑर्गेनिन में पढ़ते हैं, हम पीयूएम हम्म में देखते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में देखते हैं, वो सब हमें देखना पड़ता है। दैट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर केस टेकिंग। हम्म And case taking itself is the most major part. I think very 70% of the crucial. case is done if आपने case taking अच्छे से ली है। Now what हम्म happens is कि ये तो हम पढ़ते हैं, बट आप जब केस लेने बैठते हो तो पेशेंट सब कुछ खुल के आपके सामने नहीं रखता। I'll share you a case of mine. There was a case of urticaria, a young female in her late 30s, एंड मैं मेडिसिन दे रही हूँ, रिलीफ आ रहा है, बट थोड़े दिन बाद फिर रिलैप्स आ रहा है, फिर रिलीफ आ रहा है, फिर हम्म रिलैप्स आ रहा है। It went on for a few months, maybe 4-5 months or so. And I felt stuck that, oh no, I am giving her the best medicines that I can according to her case, whatever she has told me. कहाँ पे अटक रहा है? फिर मैंने एक दिन हम्म बिठा के उनको मैंने बोला कि क्या आपने मुझे कुछ नहीं बताया? अच्छे से, एकदम प्रेशर से, गुस्से से थोड़ा बोलना पड़ता है पेशेंट को, अथॉरिटेटिव वे में, कि कुछ है जो नहीं बताया। देन शी टोल्ड मी, मैम मुझे थैलेसीमिया का इशू है। ओह, और इतना वो भी बड़ा कैसे पॉइंट छोड़ बताया दिया। कि मुझे स्प्लीन का कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हुई थी? थैलेसीमिया भी डायरेक्टली नहीं, शी केम टू मी, शी सेड मुझे ना, मैंने हम्म कहा शुरू कब हुआ, मुझे दोबारा बताओ, सोच के कुछ हुआ था उस टाइम पे साथ में? कह रही स्प्लीन का कुछ हुआ था मुझे। मैंने कहा क्या हुआ था? वो तो याद नहीं आ रहा, बट मेरा इलाज चला था। क्या इलाज चला था? शायद ना मुझे थोड़ा सा थैलेसीमिया भी था। थोड़ा एंड देन सा। आई वाज लाइक, दिस इज द मेन पॉइंट। ऑफ कोर्स स्प्लीन इशू है तो स्किन पे अर्टिकेरिया आने के चांसेस रहेंगे, तो हमारा रूट कॉज चेंज हो हम्म गया। The morbid cause changed, so we had to change our course of treatment. And when we changed our course of treatment, then the patient got very better results, बेटर। very better results. So दिस इज द थिंग, पेशेंट को खुरेदना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको ट्रस्ट भी मेंटेन करना पड़ता है पेशेंट के साथ। व्हेन द पेशेंट वॉक्स इन, टॉक टू देम, गिव देम अ स्माइल, टॉक टू देम, एंड यू शुड नो हाउ मच स्माइल यू शुड गिव टू द पेशेंट। ये सब क्लिनिशियन टिप्स में भी आता है। क्यों? आपका फेस पेशेंट की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा। उसकी साइकोलॉजी बढ़ जाए, बिल्कुल बदल जाएगी जैसे ही आप उसे देखोगे, जिस टोन में आप उससे बात करोगे, जिस एक्सप्रेशन के साथ उससे बात करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो रहेगी, सब पेशेंट को हैम्पर करता है। Each and हम्म every muscle twitch of yours, the patient can see why you're sitting face to face. So you have to have a command on that. Then I think the clinical judgment and diagnostic approach, अभी तक भी हम जो बात कर रहे थे वो होम्योपैथिक एस्पेक्ट से ही कर रहे थे, एंड आगे भी जो हम डिस्कस करेंगे वो होम्योपैथिक एस्पेक्ट से ही करेंगे कि होम्योपैथिक एस्पेक्ट से हम इसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। सी, सो टेक्स्ट बुक नॉलेज आई टॉक्ड अबाउट। देन अगेन आई सेड पेशेंट्स डोंट कम विद टेक्स्ट बुक सिम्टम्स। You have to dig down, you have to dig deep, you have to authoritate them कि नहीं, आप बताओ
एक ट्रस्ट भी बिल्डअप करना पड़ता है एंड एक अथॉरिटी के साथ भी बोलना पड़ता है. ट्रस्ट एंड अथॉरिटी आर बोथ टू डिफरेंट थिंग्स. दोनों होने चाहिए, तभी पेशेंट सारे सिम्टम्स निकाल के बताएंगे. क्यों? अभी भी इंडिया में बहुत चीजें टैबू हैं, लोग नहीं बताते खुल के. तो आपको प्रेशराइज थोड़ा करना पड़ता है, ट्रस्ट के साथ प्रेशराइज करना. आपको उनको एक सेटिस्फैक्शन देना पड़ता है कि जो भी बताओगे आप चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगा. यू हैव टू रीड द रूम. अब अगर कोई लेडी आई है अपने हस्बैंड के साथ या अपनी मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, एंड शी इज सेइंग कि मुझे प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है, वो आपको बस इतना ही बताएगी. ये नहीं बताएगी इंटरकॉर्स के टाइम बर्निंग भी होती है, डिस्चार्ज भी निकलता है, हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिव, हस्बैंड इज डूइंग जोर जबरदस्ती, या मल्टीपल उसके अबॉर्शंस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रही है. खुल के वो नहीं बताएगी. मे बी हर मदर इन लॉ इज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ हर अबॉर्शन एंड मिसकैरेज हिस्ट्री. सो यू हैव टू रीड द रूम. इफ द पेशेंट में आपको फेशियल एक्सप्रेशंस में, उनके टोन में थोड़ा सा भी हेजिटेशन लग रहा है, यू हैव टू आस्क, बिकॉज शी विल नॉट से कि मम्मी जी या दीदी या सुनो जी बाहर जाओ. यू हैव टू आस्क द पेशेंट पार्टी कि आप प्लीज 2 मिनट बाहर जा सकते हैं. आपको वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अथॉरिटी शो करना पड़ता है. हर बार पेशेंट नहीं बोल पाएगा, बिकॉज दिस इज इंडिया. ठीक है. देन हम जो पढ़ते हैं कि आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड द साइंस ऑफ होम्योपैथी. सो डायग्नोस्टिक स्किल्स तभी आपके फ्रेशन अप होते हैं जब आप आर्ट को साइंस के साथ एंड क्लिनिकल रीजनिंग के साथ कंबाइन करके आगे चलते. ठीक. एंड अ गुड क्लिनिशियन, यू शुड जॉइन द डॉट्स. यू शुड ऑलवेज जॉइन द डॉट्स. जैसे थैलेसीमिया आए सेट कि उस पेशेंट को था. थैलेसीमिया के बहुत केसेस आते हैं एंड कई डायग्नोस्ड होते हैं, कई अनडायग्नोस्ड होते हैं. तो आपको कहाँ तक पहुंचना है? नाउ थैलेसीमिया इज अ फॉर्म ऑफ एनीमिया, राइट? अभी आपको सीधा सामने सामने से तो पेशेंट आके एनीमिया भी नहीं बोलेगा. क्यों? इंडिया में एवरी सेकेंड टू थर्ड फीमेल इज एनीमिक. अनीमिक. एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनीमिया. किसी को B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है, किसी को डी की वजह से एनीमिया हो सकता है, किसी को आयरन की वजह से हो सकता है. ठीक है. किसी को जनरल कुछ नहीं है, मे बी आयरन नहीं, आयरन के फॉर्म में नहीं, आपको फेरस में नहीं, फेरेटिन में डेफिशिएंसी आ रही है. किसी को हो सकता है कुछ नहीं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, इसलिए आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो हमारा वहां पे हीमोग्लोबिन गिर रहा है. कई बार कुछ नहीं होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन जो HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, बॉडी वो प्रोड्यूस ही कम कर रही होती है. उसके अलावा और कोई डायग्नोसिस ही नहीं होता. वहां तक पहुंचने के लिए यू शुड ऑल्सो नो कि आपको टेस्ट्स के साथ, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के साथ कैसे कॉरिलेट करना है केस को. एंड योर केस टेकिंग शुड नॉट डिपेंड ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी जस्ट अ टूल टू हेल्प यू. मेक वेरी श्योर ऑफ दैट. आपको अननेसेसरीली पेशेंट्स को बर्डन नहीं करना है टेस्ट के लिए. ऑल्सो बी अवेयर एज अ क्लिनिशियन, यू शुड बी अवेयर कि आपके एरिया में कहाँ पे कौन से पैथोलॉजी लैब्स हैं, उनके क्या क्या पैनल्स चल रहे हैं, क्या क्या रेट्स चल रहे हैं. सो यू कैन गाइड योर पेशेंट अकॉर्डिंगली. उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है क्लिनिक में. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल प्रैक्टिस. एंड यू शुड नो कि आप अगर पेशेंट को अलग से CBC, LFT, KFT, TFT और विटामिन D लिख के दे रहे हो, टेस्ट बिकॉज सीरम रेकमेंड कर रहे कैल्शियम हैं. इज यूजुअली कंबाइंड इन KFT ओनली दीज डेज. यू शुड नो पैनल्स में क्या क्या टेस्ट रहते हैं, उनके क्या क्या रेंज रहते हैं. कि आप 4 टेस्ट अलग से लिख के दे रहे हो, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी पेशेंट को आपके. एंड अगर आप बोलोगे जी एक काम करो, आप फुल बॉडी पैनल करा लो, जिसमें आपका विटामिन D, B12 भी इंक्लूडेड होगा, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फुल बॉडी पैनल पैरामीटर्स, तो आपको ज्यादा रीजनेबल पड़ेगा. You should have to have the pocket knowledge also of the patient. पेशेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है. आप हर पेशेंट को नहीं बोल सकते सीधा सर दर्द हो रहा है जाके MRI कराओ. लिटरली पेशेंट्स कम इन द क्लिनिक, एलोपैथ्स ने रेकमेंड करा होता है कि सर दर्द है, 1-2 बारी डिस्प्रिन दिया, सब दिया, ठीक है, कुछ काम नहीं आ रहा, MRI करा. दे गिव कम विद प्रिस्क्रिप्शंस रिटन MRI ब्रेन फॉर हेडेक. एंड उससे पहले एक्सरे स्पाइन भी नहीं कराया होता, सर्वाइकल स्पाइन भी नहीं कराया होता, गैस्ट्रिक सिम्टम्स नहीं पूछे होते. गैस्ट्रिक हो सकता है हेडेक, सर्वाइकल ओरिजिन का हो सकता है हेडेक, कुछ नहीं है, पेशेंट की लाइफ में स्ट्रेस है, पूछो तो पेशेंट से. टेंशन, हेडेक. हो सकता है वो भी ना हो, स्ट्रेस भी ना हो, क्या है, आयरन डेफिशिएंसी.
उससे भी हो सकता है। आयरन होगा नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ऑक्सीजन का ब्लड फ्लो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो हेडेक होगा, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर में चला जाएगा। सो एवरी लिटिल थिंग काउंट्स, एवरी लिटिल पैरामीटर काउंट्स। जितने सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं एक क्लिनिक में, आप वो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए जब क्लिनिक में बैठो तो डरो मत। क्यों? हमें लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कहीं गलती हो और होगी, तो डरो मत, उससे सीखो। पेशेंट के जाने के बाद सोचो, क्या मैंने कुछ मिस करा? हैव आई मिस्ड एनीथिंग? Go through your case again. Go through your case again, not as a failure, as a learner. Because आपको लाइफ लॉन्ग लर्न ही करना। सोचो कि क्या है। जैसे लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के केसेस जो रहते हैं, आई हैव सीन अ ट्रेंड कि लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के पेशेंट्स में iron deficiency is very prevalent, and even HbA1c is towards a very higher limit. Both these factors are almost always deranged to exponential values. कि आप सोचोगे अरे क्यों? जब तक बॉडी की इम्यूनिटी सेट नहीं है, बॉडी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है साथ में। यू हैव टू टेक सिम्टम्स, यू हैव टू टेक द हिस्ट्री, यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट बाय योर ओन आईज, एंड इफ यू डोंट हैव द इंस्ट्रूमेंट्स, इफ यू डोंट हैव द प्लेस, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, सेटअप नहीं है, इफ सपोज ऑप्स गाइनी केस है, आपके पास सेटअप ऐसा नहीं है कि आप हाइजीनिकली पेशेंट को इंटरनल चेकअप कर सकते, यू डोंट हैव अ स्कैल्पेल, यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास स्पेक्यूलम नहीं है, ग्लव्स भी नहीं है, कोई बात नहीं, रेफर द पेशेंट टू सम ऑप्स गाइनी डॉक्टर इन योर एरिया or in the nearby area, so the patient can get the examination from there, and then they can come back to you. Build that trust कि हाँ पेशेंट वहां जाके एग्जामिन करा के आ जाए, एंड देन आप आगे दो। अब कई पेशेंट्स आते हैं, आईज में रेडनेस है, ठीक, आप उन्हें एंटी एलर्जिक्स दे दोगे, सब दे दोगे, यूफ्रेशिया, एलियमसीपिया दे दिया, सब दे दिया, कुछ काम नहीं आ रहा, हमारा बेलाडोना दे दिया, कुछ काम नहीं आ रहा, एपिस दे दिया, कुछ काम नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उनको कि बीपी की दिक्कत तो नहीं है? बोलते नहीं है। लेकिन हाँ, आंखों में कई बार भारीपन लगता है, पानी आता है, फिर भी लेकिन जलन नहीं मचती ज्यादा कुछ, भारीपन लगता है, पानी आता है, या सर में भी भारीपन रहता है साथ में, तो आप बोलोगे जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओ, आइस का बीपी चेक करो, फिर मेरे पास पर्चा लेके। Because why? We cannot have the specialized instruments in our clinic, being general physicians, or even अगर आप specialist हो, कितने instruments रख लोगे? Homeopathic doctors usually practice in a confined space. जो average पे आप देखोगे, they have a confined space of practice. तो it's not feasible, it's not possible. In majority of the cases, not everyone is in the cream layer. तो यू शुड नो कहाँ पे आपको अथॉरिटी से पेशेंट को बोलना है, ट्रस्ट मेंटेन करके कि जी इधर जाओ, स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन करा के आओ, एंड देन वी विल कंटिन्यू बेस्ड ऑन दैट। ऑनेस्टी is very important. Then investigations also we talked about, and हेडेक का जैसे आई डिड से कि लाइफस्टाइल देखोगे उसका, ब्लड प्रेशर्स मेंटेन करवाओगे उसके, एंड साइनस इश्यूज है कि नहीं, हो सकता है साइनस इश्यूज हो, कुछ नहीं है। हेडेक का हम बोलते हैं ना कि पता करो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, पूरे सर में हो रहा है, सेमी लेटरल है, कैसा है, तो सब पता करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता करो और फिर पूछो। कई बार कुछ नहीं होता, नेजल पॉलिप्स होते हैं, उस वजह से ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता पूरा, बंदा रात को सो नहीं पा रहा है ठीक से, स्लीप एपनिया है, ऑक्सीजन की कमी है, तो हेडेक हो, क्योंकि दिन भर नींद आ रही है। पेशेंट आके बोल रहा है मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन भर मैं सोते रहता हूँ या सोती रहती हूँ, तो आप सीधा पैसिफ्लोरा पे नहीं जाओगे, सीधा आपको रेस्टलेसनेस की रेमेडीज पे नहीं जाना है, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, एकोनाइट पे नहीं जाना है, आपको जिंकम नहीं देना है, आपको कुछ भी नहीं देना है। आपको पेशेंट से पूछना है रेस्पिरेटरी इश्यूज तो नहीं रहते, गैस्ट्रिक इश्यूज तो नहीं रहते, स्ट्रेस का ऑफ कोर्स यू आस्क, बट यू आस्क फॉर अदर फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो। आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है।
आप सीधा एक टेक्स्ट बुक नॉलेज की बेसिस पे स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे नहीं जा सकते, या मटीरिया मेडिका से ओवरवेलम होके आप स्पेसिफिक मेडिसिन पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। आप राइट लेफ्ट अच्छे से देखते हुए पूरा एक एक बाल की खाल पे पहुंचते हुए फिर अपने डायग्नोसिस पे जाएंगे। ठीक है। मैम, वन डाउट या कि हाउ कैन वी बिल्ड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस? जैसे कई बार कई केसेस में होता है, वी गेट सो मेनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसके बीच में हम फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को, उस डेडलॉक को कैसे ब्रेक करें कि मतलब कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं जो बहुत सिमिलर लगती हैं। इन दैट केस इज ऑल्सो कई बार लेबोरेटरी टेस्ट भी बहुत वही मान लो जैसे दो स्पेसिफिक केसेस नहीं को देते, हम्म स्पेसिफिक तो इंडिकेशन फिर नहीं उस देते। केसेस पे कैसे डील करें, उस उस डेडलॉक को कैसे केसेस तोड़ें? पे आप ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पे ही जाओगे। हम्म ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स से आप फिर टेक्स्ट बुक नॉलेज को लेवरेज दोगे कि ऑब्जेक्टिव हम्म सिम्टम्स के बेसिस पे और मोडालिटीज के बेसिस पे आपको क्या डायग्नोसिस लगा है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये ज्यादातर होता है स्किन के केसेस, क्योंकि स्किन हम्म के केसेस में हम हर डिजीज में टेस्ट नहीं करा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल, उससे हमको कोई डायग्नोसिस नहीं निकल के आएगा। स्किन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सब्जेक्टिव सिम्टम्स पे रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई टेल यू अ केस ऑफ माइन, फीमेल ऑफ आई थिंक 60+ एज केम टू मी, एंड कितने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, उन्होंने सबने लिखा था एक्जिमा एक्जिमा डर्मेटाइटिस, एक्जिमा डर्मेटाइटिस। एक ने तो सोरियासिस भी लिखा था। ठीक है, इट लुक्ड लाइक दैट, इट डिड लुक हम्म लाइक दैट, बट इट वाज ऑन हर लोअर एक्सट्रीमिटीज। पूरे काफ्स में था और नीचे फीट पे भी था। ठीक है। एंड I took the case. I found respiratory history, COPD का बहुत strong history था उनके केस में, एंड ओके। कार्डियक हिस्ट्री भी थी। सो वो तो हमारा हो गया नॉन सिम्टम्स। हम्म एंड अगर हम इन्वेस्टिगेशंस कराते भी तो वो कंफर्म होता कि ठीक है, ब्रोंकाइटिस आपको दिखेगा, इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं, थोड़ा फाइब्रोसिस भी दिख सकता है लंग्स में, क्योंकि 60+ एज है, लाइफ लॉन्ग सीओपीडी रहा है, तो आपको थोड़ा सा फाइब्रोसिस भी लंग्स में दिख सकता है। एंड हार्ट हम्म सिम्टम्स भी आप जो जो कराओगे, आप सीआरपी कराओ, आप ईसीजी कराओ, आप एको कराओ, कुछ ना कुछ अबनॉर्मैलिटी उसके बेसिस पे आती। बट वो तो हमारे जो ऑलरेडी कंफर्म्ड डायग्नोसिस है उसी को और जाके सब्सटैंशिएट करता, हमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हम्म मिलता। अब हमारे पास हम्म बचती है स्किन एंड हिस्ट्री, एंड ये फैक्टर कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी हैं, एक्जिमा हम्म सोरियासिस सबका वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले चुकी हैं, बट रिलीफ नहीं है। सो हम्म व्हाट वी कम ओवर हियर इज कि हम स्किन को हटा देंगे। हम अच्छा। यहाँ से स्किन को ही सोचना हटा देंगे। हम सोचेंगे कि इंटरनल, स्किन इज एक्सटर्नल। हमने क्या पढ़ा है होम्योपैथी में कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स स्टिमुलेट को। करते हैं। ठीक है। हेरिंग्स अंदर लॉ जो ऑफ। प्रॉब्लम होगी, यस, वो सबसे पहले बाहर जाएगा सिम्टम। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर करा उनका रेस्पिरेटरी और कार्डियक हिस्ट्री। देन मैंने वहां से लगाया सेम। देखो, ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों में, वाटर, ऑक्सीजन, वाटर इनटेक नहीं है, फाइबर इनटेक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है कहीं किसी सिस्टम में बिकॉज ऑफ एनी पैरेलल डायग्नोसिस। ठीक है। तो आपको वो कंसिडर करना है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं। हम्म So that case was of peripheral vascular disease. ओके। एंड एक्सट्रीमिटीज पे सबसे पहले अगर ऑक्सीजन नहीं है या ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज है, सबसे पहले बॉडी अपने एक्सट्रीमिटीज डिस्टल पार्ट्स में जाके शो करेगी कि प्रॉब्लम है। डिस्टल पार्ट्स का भी लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज स्किन। हम्म तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में आपको पीडल एडिमा भी मिल सकता है, आपको स्किन सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। आई गेव हर मेडिसिन फॉर दैट, विद इन 15 days miraculous changes. डायग्नोसिस ही गलत होता है कई बारी, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम एवरी अदर पर्सपेक्टिव, दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू लुक राइट एंड यू हैव टू लुक लेफ्ट। बाल की खाल तक पहुंचने के लिए आपको राइट लेफ्ट कंटिन्यूसली देखते हुए चलना पड़ता है। यू कैन नॉट मिस अ सिंगल फैक्टर। आपको कल्मिनेशन क्रिएट करना पड़ता है, आपको एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ता है हर एक पॉइंट का, जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने नहीं है। हम्म Diagnosis is very, very important. One more case I'll share. A young boy in early हम्म 20s came to me, said works in airlines on ground job.
ठीक है, तो सेड कि मुझे सर्वाइकल पेन, डेल्टॉइड पेन एंड आर्म पेन हो रहा है। 3 सिम्टम्स ही गेव मी एंड ही सेड ज्यादा एक्सर्शन अगर करता हूँ, थोड़ा वेट वगैरह ज्यादा उठा लेता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा लोअर बैक में पेन होता है, लोअर बैक। थोड़ा थोड़ा, नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट क्लिक्ड इन माय माइंड विद दीज सिम्टम्स। मैंने सब पूछा, सब कराया, एक्सरे वैक्सरे मैंने कहा कराया, कह रहे नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक्सरे तो करा देंगे हम, बाकी सारे सिम्टम्स लिए। कई बार गैस्ट्रिक पेन्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक हिस्ट्री ली, कुछ नहीं था। मैंने पूछा ज्यादा झुकने का काम तो नहीं होता, बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाने का काम तो नहीं होता, बिकॉज ग्राउंड जॉब है एयरलाइंस में, हो सकता है बैगेज क्लेमिंग में हो या किसी ऐसे यूनिट में हो जहाँ पे वेट उठाना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फुल हिस्ट्री ली, फैमिली हिस्ट्री ली, सब पूछा, नथिंग एट ऑल। ब्लड टेस्ट कराए, कैल्शियम भी ठीक था, विटामिन डी तो कम होता ही है, बट इतना कम नहीं था कि हम बोले कि इट्स वेरी कंसर्निंग, कि हाँ बहुत फ्रेजाइल हो सकती है अंदर से, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वीक है, उस वजह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेनिंग आई है, कुछ हुआ है। देन आई सेड चलो यंग बॉडी है, एंड द पेशेंट वाज इन टू मच पेन, नॉर्मल पेन का लेवल नहीं था। पेशेंट केम टू मी, कुडंट सिट फॉर 10 seconds at a stretch, couldn't sit on the patient's stool for 10 seconds at a stretch, इतना पेन था, इतना पेशेंट रेस्टलेस था। इस एज में अगर इतना पेन है तो हम सिर्फ अपने क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। क्यों? आपको मैनेजमेंट भी देना है पेशेंट को, आप सिर्फ मेडिसिन दे के नहीं पेशेंट को भेज सकते। मैनेजमेंट क्या देना है वो आपके डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। इन एवरी केस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सेड डाइट एंड न्यूट्रिशन, डाइट न्यूट्रिशन कैसे बताओगे पेशेंट का? आपको ये नहीं पता सेंसिटिविटी क्या है। आप बोल दो जी दर्द है, हल्दी का दूध पियो। अरे पेशेंट को अगर साथ में पाइल्स का इशू है या गर्म तसीर नहीं सूट करती, आप हल्दी का दूध दोगे, उसको पाइल्स भी हो जाएगी साथ, आपकी मेडिसिन नहीं करेगी, उसका लाइफस्टाइल कर देगा। मैनेजमेंट का क्लॉज आपका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। इसलिए हम इंडिविजुअलाइजेशन, होलिस्टिक अप्रोच को अगर सीरियसली लेते हैं तो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स आस्क होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऑन अ फेस, अरे आप लोगों में तो डायग्नोसिस का कोई मतलब ही नहीं होता, आप क्यों इतना करवा रहे हो? आप लोग भी डायग्नोसिस पे जाते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी टेस्ट कराते हैं। एक्चुअल वर्ड्स फ्रॉम माय ओन पेशेंट्स कि आप लोगों को क्या काम है टेस्ट कराने का। सो वी हैव टू एक्सप्लेन कि देखो जी बीमारी बदल जाएगी, दवा भी बदलेगी, मैनेजमेंट भी बदलेगा, और आप कितने टाइम में ठीक होगे वो भी बदलेगा। ठीक होगे कि नहीं होगे वो भी बदल जाएगा। प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस से मैम आपका, एट टाइम, सॉरी मैं आपको कट या कर नो रही हूँ, बोलो बोलो। बट एट टाइम कभी ऐसे चैलेंजिंग पेशेंट नहीं कम अक्रॉस हुआ जो जिसने मान लो एलोपैथ सेड समथिंग एल्स, डायग्नोसिस कुछ और निकाला था, लाइक यू शेयर्ड अर्लियर, एंड you had a very different perspective and you came onto some other diagnosis. So the patient challenged you that being a homeopath you might be wrong. वो तो एलोपैथ था, फलाना डॉक्टर ऐसे बोल रहा था, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स आई हैव ऑल्सो सीन ब्रेन वॉश कर देते हैं पेशेंट्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि दे आर मेकिंग कमीशन सेट है, कुछ दवाइयां ऐसे। तो वो पेशेंट्स कई जो आई डोंट वांट टू से बट दे आर सो मच ब्रेन वॉश्ड कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने लग जाए। तब वहां पे आपके रिजल्ट्स काम आएंगे। जैसे मैंने बोला कि उन पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी, 15 दिन में रिजल्ट आया, तो हम्म। पेशेंट की आंखों के सामने रिजल्ट था। आप जो केस कह रहे हो उसमें पेशेंट मेडिसिन लेगा ही नहीं। हम्म। ऐसे पेशेंट को, लुक यू हैव टू लेट सम पेशेंट्स गो। जब तक पेशेंट को आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप उसे कितनी मर्जी दवाई दो, वो दवाई ठीक से लेगा भी नहीं। वो आपका मैनेजमेंट या जो एडवाइस आप दोगे उसको भी ठीक से फॉलो नहीं करेगा, एंड वो आपको फेल करके ही जाएगा। क्योंकि पेशेंट का ट्रस्ट नहीं था स्टार्टिंग से। पेशेंट का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी, तभी वो आपको सेकेंड फॉलोअप में मौका देगा। अगर आराम नहीं आया तो आप अपना रेमेडी चेंज करो। हम्म। ट्रस्ट नहीं होगा तो सेकेंड फॉलोअप भी नहीं होगा। ट्रस्ट होना गॉट बहुत इट। जरूरी है। यहाँ पे ट्रस्ट का फैक्टर आता है, क्योंकि जो मैंने केस बताया पेशेंट ने ट्रस्ट करा। वाई? बिकॉज पेशेंट वॉज अ रेफरल पेशेंट। ओके। पेशेंट को मेरे पास भेजा ट्रस्ट के बेसिस पे गया था। हम्म। पेशेंट को मुझ पे ट्रस्ट था कि जिन्होंने भेजा है उन्हें आराम था, उन्होंने कॉन्फिडेंस से उनको मेरा रेफरेंस दिया,
तो वो पेशेंटली सुने. And this case was one of my first cases, the Oh, peripheral vascular wow. disease. Freshly out of college in COVID lockdown, first lockdown. I was a 2020 batch. My internship got over in 2020. And freshly out of college, I don't know, touch wood, maybe it's the blessings of Dr. Hahnemann, gods, my parents, or whatever. At times, some random diagnosis do come to my mind, and they turn out to be true for the patients, correct for the patients. And they are very unusual, but yes, they do come. Some gut feeling does help. So But then again, you basically, need it's to a have a very broad mind, hmm, very broad mind. collective knowledge. वेरी ब्रॉड माइंड यू शुड हैव. वेरी ब्रॉड माइंड. आप बिल्कुल देखो, अब डर्मेटोलॉजिस्ट की भी यहाँ पे पूरी गलती नहीं. यहाँ पे आप बोलेंगे क्यों, वो दिन Hmm. भर स्किन के ही केसेस देख रहे हैं. Hmm. उनका नैरो माइंड हो चुका है कि वो स्किन के बारे में ही सोचेंगे. वो ये नहीं सोचेंगे इनको सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है तो हम इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास या हम किसी इनको ईएनटी के पास भेजें कि आप वहां जाओ. वो सोचेंगे स्किन कंप्लेंट ही है क्योंकि प्रेजेंटेशन फाइनल सिम्टम्स का स्किन पे दिख रहा है. उनके लिए Hmm. इट इज डर्मा रिलेटेड. तो इसलिए होम्योपैथी में भी डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है ना, सब देखो, नैरो माइंडेडनेस करके चलोगे तो कुछ नहीं होगा. ऑर्गेनन का हर अफोरिज्म करेक्ट. Prejudiced. यस, ऑर्गेनन का हर Hmm. अफोरिज्म करेक्ट है. स्पेशलिस्ट जो है वो प्रेजुडिस हो जाते हैं. इसलिए आई थिंक द मोस्ट Hmm. अनप्रेजुडिस्ड स्पेशलाइजेशन इज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. सो आप देखोगे कोई ऐसे केसेस जो स्टक होते हैं, जो एलोपैथ्स में भी आप जाओगे अगर, इफ सम केसेस टू कॉम्प्लिकेटेड, सारे स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, कहीं से आपको आंसर नहीं मिल रहा, सो द पेशेंट इज एट द एंड रेफर्ड टू अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन who is MD in medicine, that is practice of Medicine. medicine. That doctor is MD POM. सबसे ब्रॉड माइंड उनका होता है एलोपैथी में. और वो सबसे सिंपल, कई कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस के तो उनके पास इतने सिंपल सोल्यूशन, सिंपल डायग्नोसिस होते हैं कि आप सोचोगे अच्छा बस यही था. बिकॉज वो नैरो माइंडेड नहीं होते. उनका अप्रोच वहां पे सही रहता है. एंड दैट यंग पेशेंट दैट आई वाज टेलिंग अबाउट, जो 10 सेकंड तक भी अपने पेशेंट स्टूल पे नहीं बैठ पा रहा था, देन अगेन गट फीलिंग हेल्प्ड मी. कि Hmm. मैंने जब उनको एक्सरे लिखा तो मैंने सर्वाइकल के साथ साथ मैंने उनको लंबोसेक्रल एरिया भी लिख के दिया. आई डोंट नो व्हाई. Okay. बोला उन्होंने सिर्फ माइल्ड पेन था. कुड बी Hmm. जस्ट कि चलो विटामिन डी की कमी की वजह से ही उनको मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस फील हो रहा है कि क्या लंबैगो थोड़ा बहुत हो रहा है. बट समथिंग in my gut said no, write it down. I wrote it, and the diagnosis came out in the x-ray itself. The pain that the patient was in, अगर वो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता, वो छूटते ही सीटी एमआरआई लिखते. 200%. Hmm. Excruciating pain the patient was in. I wrote x-ray because clinician, again another tip, start from the basics. Okay. स्क्रीनिंग करो बेसिक से. ए से बी पे जाओ, सीधा बी पे मत जाओ. Hmm. एमआरआई सीटी स्कैन पे सीधा नहीं जाते. पेशेंट को इतना रेडिएशन से और उसकी पॉकेट पे इतना स्ट्रेन नहीं डालते. कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस को आंसर करना है. एंड अगर पेशेंट को आप लॉन्ग टर्म चाहते हो कि क्लिनिक में वो आपको रेफरल दे, तो Hmm. आपको पेशेंट को मिसगाइड नहीं करना. बेसिक से Hmm. स्टार्ट करो. अगर कुछ आना होगा एक्सरे में आएगा, नहीं आएगा, एंड मेडिसिन से भी आपको, आपने जो Then. उसको फर्स्ट एड दिया मेडिसिन का, अगर उससे भी रिलीफ नहीं आ रहा है, जो सिम्टोमेटिक बेसिस पे अगर आपने दिया, तो फिर जाओ एडवांस्ड पे. फिर देखो कि सीटी कराना है कि एमआरआई कराना है, कंट्रास्ट कराना है नहीं कराना है, किसी स्पेसिफिक पार्ट का कराना है कि मल्टीपल पार्ट्स का कराना है. एंड एक्सप्लेन टू योर पेशेंट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग. उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप. So what came in Hmm. the X-ray was cervical region was clear. इस पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाज्म, मसल्स में मस्कुलर स्पाज्म भी दिख जाता है कई बार एक्सरे सर्वाइकल के केसेस में. अगर बहुत ज्यादा स्पाज्म होता है तो वो भी दिख जाता है, मसल्स की रिजिडिटी भी दिख जाती है. कुछ भी नहीं था. Hmm. सर्वाइकल रीजन वॉज क्लियर. अगर मुझे लिखना था, अगर वो डेल्टोइड में भी पेन बता रहा था, तो मुझे लिखना था, तो मुझे थोरैसिक लिखना चाहिए था.
Hmm. I did not write thoracic. I wrote lumbosacral. The patient has spina bifida, congenital disorder at S1 level. 20 plus years of his life, symptomless. No symptom, asymptomatic. Suddenly, symptoms in the severity that are Appear. present for a spina bifida patient. उसकी spine S से S1 level पे. I gave homeopathy, no allopathic medicine, and management for spina bifida. You'll see Calcarea carb, Lycopodium, top grade medicines for spina bifida. And patient came to me yesterday with his mother. He came for follow-ups. He was very well. मतलब आप लगाओ 2-3 दिन में आराम आना स्टार्ट हो गया था. हफ्ते भर मैंने उस पेशेंट को, आई यूजुअली कॉल पेशेंट्स फॉर 15 या 30 days follow-ups बिकॉज ज्यादातर क्रॉनिक केसेस आते हैं होम्योपैथी में. दिस वाज आल्सो क्रॉनिक, बट क्योंकि स्पाइना बाइफिडा आप क्रॉनिक में कंसिडर करोगे अकॉर्डिंग टू द Hmm. इटियोलॉजी. But Hmm. acute presentation tha symptoms ka, so I called the patient for regular follow-ups on weekly basis for 2-3 weeks, and patient was very much relieved, very much satisfied, again mentioning no allopathic medicines, no painkillers. Starting mein yes, patient was taking because the For a pain was excruciating. congenital disease. Yes. And the patient came to me. उसके बाद patient ने Hmm. 1 month तक लिया होगा medicine. Then patient did not come back for follow up or anything. Yesterday patient came to me and with his mother. His mother was the first patient from their family. उनको relief आया था for again a chronic pruritus condition. In a week or 2 weeks, she was relieved by our homeopathy, and she was very happy. She touchwood referred a lot of patients also, so she got her own son when the son was in distress. So yesterday the both came, mother and son, and I asked him, "How are you? You haven't been back." He said, "Ma'am, I'm totally fine. I haven't had to take any medicine. I haven't had to take anything. Also, I referred them to a orthopedic specialist कि आप एक बार जाओ. फिर भी मैं चाहूंगी आप यंग हो, आप एक बार उनसे भी रिव्यू लेके आओ. Tell me Hmm. what they are saying about your condition. That is there anything that I might miss? Being in my heart, I was like, I am still a young doctor and I am still learning. उनका काम है डेली उसी बेसिस के केस देखना. तो उनकी एक्सपर्टीज एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही रहेगा. केबीसी में होता है ना एक्सपर्ट ओपिनियन का लाइफलाइन. Hmm. तो कभी शर्माना नहीं है एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से. नेवर. हम अपने होम्योपैथिक अगर सीनियर्स से पूछ रहे हैं तो उनका भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं. बीइंग अ क्लिनिशियन यू आर ऑलवेज अ लर्नर. जिससे सीखो वो कम है. आपका पेशेंट भी आपको कुछ होम्योपैथी के बारे में भी बता के जाए तो उससे भी सीखो, उसको थैंक यू बोलो. तो आई रेफर टू देम एंड वो वहां भी नहीं गए. ही वाज सो रिलीव्ड कि उसको लगा अरे छोड़ो मैं तो ठीक हूं, मैं क्या करूंगा जाके, क्यों जाऊं. क्योंकि पेशेंट को खर्चा तो दिखाई देता है. ठीक है. सो आई देन अगेन इंसिस्टेड yesterday and I again told them नहीं जाओ. If you've trusted me this long, then trust me here also. एक बार जाओ फीडबैक लेके आओ and inform them होम्योपैथी लिया था बिल्कुल रिलीफ है. Inform them it's okay, Hmm. but do go. So clinical practice has a lot of colors and you have to embrace each and every color. I'll tell you, when I was in, I think, final year or internship, I think final year, fourth year or internship maybe, I was in my community park and this neighbor of ours, she sat next to me. She said, "Oh, my daughter is a depression patient because of loss of the patient's grandmother." So Okay. my neighbor's mother-in-law. Okay, after the death of the Hmm. mother-in-law, the granddaughter was in depression. So they were too connected and all that. So she said, I've referred a lot of homeopathic doctors also, allopathic doctors also. Of course, she's too young, so I don't want to give her allopathy. And I give her a rescue remedy, which really helps her in a lot of ways. I said, rescue remedy? Is it a homeopathic medicine? She said, yes. And back then, this is in probably 2018 or so. Okay, 2017-18 maybe. So तब बैचलर रेमेडीज कॉमन प्रैक्टिस में इतने नहीं नहीं थे, थी. वो अभी पॉपुलराइज हो Hmm. गए. सो Hmm. सेड रेस्क्यू रेमेडी व्हाट इज दैट. शी सेड नहीं होम्योपैथी में ही होता है. एंड आई थिंक शी टोल्ड मी बैच फ्लावर रेमेडीज होते हैं,
उसमें होता है और मुझे मेरी बेटी को उससे रिलीफ मिला है. I said, okay, I am not aware of this. She said, no, you study and it is very helpful. I said, okay, auntie, thank you so much. I was not aware of this. I'll surely go home and read about it. So I was not embarrassed. I was happy. Let me tell you, I have no family background in medicine. Oh, No family means you're background in first medicine. generation doctor. Doctor of any sort. No family background in medicine. None. Nil. Nada. So I was very happy. Okay, auntie, I'll go home and I'll read about it. तो न्यू लाइफ की बुक आती है पीले रंग की, टेक्स्ट बुक है बैचलर रेमेडीज, पतली सी, ठीक है. एंड पता नहीं कहाँ से मेरे को याद आया कि कुछ तो ऐसा मैंने बैचलर सा एक बुक देखी है कहीं से. एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे टालकर वो आई थिंक प्यारेलाल ऑडिटोरियम में जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे पहले होता था इवेंट, आई थिंक वहां कहीं पे किसी काउंटर से मिली हुई थी कभी सैंपल्स के साथ. So that was in my book cabinet. And while arranging my books, एक दिन वो मेरे उसी के 2-3 दिन बाद ही मैं अपनी बुक्स अरेंज करी थी, तभी मेरे हाथ लग गई. किस्मत मेरे हाथ लगी. ऐसे अरे यही तो आंटी वाज टॉकिंग अबाउट. उसमें सब लिखा था बैचलर रेमेडीज का. एंड बहुत शॉर्ट में लिखा होता है बट इट इज सफिशिएंट. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट इटसेल्फ. इन डेप्थ पढ़ना तो ऑफ कोर्स बहुत मटेरियल है, आप उसको भी पढ़ोगे आप तब भी समझ जाओगे कि ये क्या है. मैंने पढ़ा एंड ओके दिस इज व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट. एंड आई प्रैक्टिस्ड विद पैच फ्लावर आल्सो. एंड द friends of mine who have generations of homeopathic doctors in their families, when they got to know कि अच्छा तू भी बैचलर प्रैक्टिस करती है, then first question they said कि तुझे किसने बताया बैचलर के बारे में. क्योंकि तब कॉलेज में जिक्र भी नहीं होता था बैचलर का. अभी भी नहीं करते मैम. अभी भी ज्यादा नहीं करेंगे, but then it does work and it is based on homeopathy concept. उसका बस ड्रग सोर्स ये तो स्पेसिफिक है ना. जैसे हम बायो कॉम्बिनेशंस देखते हैं, हम बायोकेमिक्स देखते हैं. बायोकेमिक इज अ डिफरेंट रेंज एंड सिमिलरली बैचलर इज अ डिफरेंट रेंज, बट है तो होम्योपैथिक डिफरेंट है. कॉन्सेप्ट से. जो ट्राइचुरेशन प्रोसेस है, जो हमारा पोटेंटाइजेशन जो प्रोसेस है, वो सिमिलर ही है. तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है. सो यू डू प्रैक्टिस एंड यू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स फ्रॉम बैचलर्स आल्सो. ऐसा कुछ नहीं है. तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको हर चीज कंबाइन कर, आप कुछ भी आपके पेशेंट को आराम दिला सकता है. आपको ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो होम्योपैथिक ही देंगे, सिंगल डोज ही देंगे. Don't confine yourself to that. See, I had no family background. I had no specific mentors. When I passed out, I asked 15-20 doctors कि मैं आपके साथ प्लीज बैठ सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ. Everyone refused on my face with some bahana or straightforward. So I had to teach myself. I had to learn. I had to teach myself. I fell down. I got myself up. So learn from experience. Learn from practice. That is why we practice. क्लिनिशियन के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उस प्रैक्टिस से सीखो, उससे एम्बैरस कभी मत हो. दैट्स व्हाई आई सेड लर्न फ्रॉम एवरीवन. नेवर फील अशेम्ड कि आपने क्यों करा. सो लेट्स टेक अनदर पॉइंट. 50% 70% डायग्नोसिस तो केस टेकिंग से हो जाता है. दैट वी कवर्ड. एंड सी ऑल्सो डॉक्टर्स से कि पेशेंट को इधर ऑल्सो हैव रिटन कि पेशेंट को बोलने दो, कंप्लीट करने दो, टोको मत. कभी कभी टोकना पड़ता है बट वो फिर आपका प्रैक्टिस ही आपको एक्सपीरियंस देके बताती है कि कब टोकना है. टोको पेशेंट को. ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिशियन बन के बैठे हो, क्योंकि देखो यू एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर. Extensive case taking is important, but that time you give usually in the first case taking, first follow, the first visit of the patient. Follow-ups should be shorter. Why? Because first follow-up में आप पेशेंट से अच्छे से हिस्ट्री लो एंड फर्स्ट फॉलोअप में अपने बेसिक्स क्लियर कर लो केस के बारे में. अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सेट आपका फर्स्ट फॉलोअप में रेडी ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए. इतने स्किल्स आपके शार्पेंड धीरे धीरे करो कि आप फर्स्ट फॉलोअप में, फर्स्ट विजिट में आप पेशेंट को भाप सको एंड टोको पेशेंट को. लेकिन कहाँ टोकना है उस चीज को प्रैक्टिस से आने दो. ठीक है. यू आर नॉट इन योर कॉलेज ओपीडी आईपीडी व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक. एट द एंड ऑफ द डे, yes, it's about bread and butter.
एंड पेशेंट इज द मोस्ट इम्पेशेंट पर्सन. उसका नाम पेशेंट इसलिए क्योंकि वो हमें पेशेंट सिखाता है. ऑलवेज रिमेंबर, patient will never show patience. Never. You have to be इंस्टेंट patient रिलीफ in चाहिए. front of the patient. वो हमें पेशेंट सिखाते हैं इसलिए उनका नाम पेशेंट है. ठीक है. ऑलवेज कीप दैट पॉइंट इन माइंड ऑल्सो. देन बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन माइन्यूट लेवल पे पैलर है नहीं है, साइनोसिस है नहीं है, आपका क्लबिंग. क्लबिंग है नहीं है, इक्ट्रस तो नहीं दिख रहा, इडीमा कहाँ है नहीं है, पिटिंग है नहीं है. एंड पेशेंट को वन थिंग आई हैव ऑलवेज लर्न कि पेशेंट को छूने से मत डरो. आवर टीचर्स यूज्ड टू टीच दिस पॉइंट. पेशेंट को छूने से कभी मत डरो. नेवर. Unless and until of course it's you can see it's something infective, then yes, restrain. And even if you do with gloves. If you know it's not infective, then don't be scared to touch the patient. Sanitize कर लो हाथ, धो लो हाथ. Never be scared to touch your patient. Never. Clinic में never. Never hesitate. This little child came to me, the grandmother got the child and said कि 2-3 दिन हो गए अभी तक potty नहीं आ रही है. And while I was taking the case, the child sat on my patient cabin's floor and वहां पर ही potty कर दी. You don't have to make a face. You don't have to say कि अरे ये क्या कर दिया बच्चे ने. नहीं. I was very happy कि एनर्जी नहीं उसकी potty दिला दी जो 3 दिन से नहीं आ रही थी. ऐसे कह रहे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक हो गया, देखो दवाई नहीं देनी पड़ेगी. Little baby, why need to give medicine ना. Anyway the baby was fine, कुछ नहीं, फाइबर कम दिया होगा पेरेंट्स ने. एंड बट यस बाद में थोड़ा उसका केस कॉम्प्लिकेट हुआ था, उसको टाइफाइड निकल के आया था. सो ओके. यस. एनीवे दैट वो जो मेन कंसर्न जब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आई वो वहां के वहां ही ठीक हो गई. तो हम दवाई क्यों देंगे. एंड क्लिनिक में लोग आके सुसु भी करेंगे, पॉटी भी करेंगे, अलग अलग तरीके के डिस्चार्जेस आएंगे. तो बीइंग अ गुड क्लिनिशियन आप बल्कि उससे ऑब्जर्वेशन लो, आप उससे कभी डिस्गस्ट मत हो. नेवर. इट्स ओके, दिस इज आवर वर्क. बॉडी से हम लर्न करते हैं एंड बॉडी को हम ट्रीट करते हैं. जब तक आप बॉडी का हर एक फंक्शन आंखों से नहीं देखोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे इन डिस्ट्रेस और इन हेल्थ, you will not be a good learner. And to be a good doctor, you have to be a good learner. That is very important. Then correlate symptoms, I said connect the dots. Like in the spina bifida case, there was a very faint dot, but I did not leave that dot. You do not have to leave any dot. Don't leave any stone unturned. Okay? Then don't judge to labels also. I said कि सर दर्द हो रहा है तो बिल्कुल स्पेसिफिक जाके कि नहीं बस बेलाडोना दे दिया या कुछ कार्बोवेज दे दिया गैस्ट्रिक समझ के. नहीं, पूरा केस लो. पूछो पेशेंट से लास्ट आई चेकअप कब कराया था. नहीं कराया था तो बोलो कि ठीक है और कुछ नहीं मिल रहा, पहले आप एक्सरे करा के लाओ सर्वाइकल स्पाइन का. अगर शोल्डर डिस्कम्फर्ट है या पेन है, रिजिडिटी है, डेस्क जॉब है, ऐसा कोई अगर आपको प्रोफेशनल लग रहा है कि फैक्टर इन्वॉल्व है, या नहीं है कुछ भी नहीं है तो बोलो आई चेकअप एक बार करा के आओ पहले. सीधा मेडिसिन एकदम हर केस में नहीं देते. कई बार पेशेंट को भेजना पड़ता है. अब वो आए ना आए, बिकॉज एज बीइंग यंग डॉक्टर बोलेगा अरे कौन जाए दोबारा, चलो दूसरे डॉक्टर पे चलते हैं, इसने तो मेडिसिन ही नहीं दी. फिर वहां पे वो ट्रस्ट फैक्टर है. देन यू हैव टू जस्ट लेट गो. उसको सोचना नहीं है. नहीं आया पेशेंट कोई बात, जो लिखा है आपके किस्मत में घूम फिर के वो मिलेगा. तो क्लिनिक में डिप्रेस नहीं होते. हम डिप्रेस होंगे तो हम फिर ठीक कैसे करेंगे लोगों को. पेशेंस इन एवरी एस्पेक्ट, पेशेंस रहना चाहिए. ठीक है. एंड अगेन आई सेड अगर थैलेसीमिया का मैंने बोला तो ऐसा नहीं है हर आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट, हर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पेशेंट थैलेसीमिया हो जाएगा. नो. यू कैन ऑलवेज गो फॉर स्क्रीनिंग. अगर सप्लीमेंट्स दिए बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही है या बहुत एक्सेसिवली अब्सॉर्ब कर लिया बॉडी ने, देन गो फॉर स्क्रीनिंग. बट एकदम से आयरन डेफिशिएंसी अगर दिख रही है आपको या हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है आपको, तो आप एकदम से HbHpLC नहीं लिखोगे, विच इज वी गो फॉर अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज.
गो फॉर HB HPLC टेस्ट, उसी में हमको थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे वहीं दिखते हैं। एकदम से उस पर ओके। नहीं जाना, ऐसा नहीं है। वही की टेस्ट जो भी लिखो, बिकॉज क्लिनिक में देखो इन्वेस्टिगेशन बेसिक। जरूरी होते हैं, बट एक तरीके से चलना पड़ता है। सीधा जैसे MRI CT हम्म। स्कैन पे नहीं जाते तो सीधा स्पेशलाइज टेस्ट पे भी नहीं जाते। आप अगर हम्म। KFT लिख रहे हो, उसमें लिखो विद EGFR, एस्टिमेटेड हम्म। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इफ दैट इज लेस देन 100। अभी वो भी देखो कि ग्रेड 1 में है, 90s में है, 80s में है, 70s में है, ग्रेड 2 में आ रहा है, ग्रेड 3 में आ रहा है, तो उसके हिसाब से देखोगे कि अच्छा बाकी के सिम्टम्स कैसे हैं। आपको KFT के साथ साथ अब नेक्स्ट क्या लिखना है, क्या आपको अल्ट्रासाउंड पे जाना है, क्या आपको CCT पे जाना है, KUB के, किधर जाना है। एंड पहले हमेशा अल्ट्रासाउंड पे जाओगे, फिर या हम्म। आप देखोगे कि कार्डियक तो इन्वॉल्व नहीं है कहीं, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से भी आपके, या कार्डियक की वजह से भी किडनीज आपकी स्ट्रेस में जाके GFR कम हो इफेक्ट सकता हो है। सकता या है। बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है, रूमेटिक टेंडेंसी है बॉडी की, तो रूमेटॉइड टेंडेंसी में भी इन्फ्लेमेशन होता है, उससे आपका ब्लड फ्लो हैम्पर होता है एंड GFR आपका इफेक्ट हो जाता है। सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ द केस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर एस्पेक्ट में, कि आपको कौन सा एक फर्स्ट लेवल के बाद, अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आई थिंक मेन थिंग विच होम्योपैथ्स डोंट कवर आर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। हम्म। लिमिटेशंस वहां पे आते हैं मेजोरिटी डॉक्टर्स में, दे ओनली से अच्छा टोटलिटी बन गया सिम्टम्स का, मेडिसिन दिया। कई बार केसेस में मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज होम्योपैथी इज मैजिक, एट द एंड ऑफ द डे इट इज मैजिक, बट मैनेजमेंट मिस आउट हो जाता है वहां पर। एंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्नोसिस एंड रेकरेंसी ऑफ एनी कंडीशन एंड एनी सिम्टम्स। तो मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू गो फॉर डायग्नोसिस, एंड डायग्नोसिस के लिए आपको अगर इन्वेस्टिगेशंस का सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट ही चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी केस में। देन यस, ऐसा टेस्ट कंफर्म, दे डोंट रिप्लेस क्लिनिकल जजमेंट। एंड होलिस्टिक अप्रोच ऑल्सो वी सेड, माइंड बॉडी कनेक्शन हमारा होम्योपैथ्स का USP रहता है। ट्रिनिटी। हम्म। टेम्पेरामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मायाजम भी देखोगे आप, हम्म। अगर इरप्शंस हैं तो वो सोरिक हैं, सिफिलिटिक हैं कि साइकोटिक है। हर इरप्शन का भी मायाजम अलग होता है, हर डिजीज के प्रेजेंटेशन का मायाजम अलग होता है। पेप्टिक अल्सर्स हैं, अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, तो वो अभी अल्सर्स भी सोरिक, साइकोटिक, सिफिलिटिक स्टेज में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अल्सर है तो सिफिलिटिक, सिफिलिस। क्योंकि उसका कंडीशन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसकी वजह से वो कौन से माइजम में अभी टिका हुआ है, कौन से माइजम की तरफ उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, आप वो भी देखोगे। एंड मोडालिटीज ऑफ कोर्स वी सी, एंड ड्रग अफिनिटीज ऑल्सो वी सी। नाउ हियर लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया कार्ब आर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एपिस एंड नेट्रोम्यूरा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, Thuja and CP are complementary medicines. Nux vomica and sulfur में follows well and complementary दोनों आता है. So you can give two medicines separately or as combined if they are complementary. Follows well में तो separate करके दे दो, and complementary है हम्म। तो आप combine करके भी दे सकते हो. ऐसा नहीं है like companies they make patent products. So see, I have worked in pharmaceutical companies. I was in Burnett before, then I was in Advent, and I was ओके। in research and development medical officer in Burnett, and in Advent I was the product and training manager. So I used to give training also to employees. And प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मैं खुद देखो, आई सेड आई एम अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, तो मेरा कोई मैं बायस्ड नहीं थी, मेरा कोई प्रेजुडिस नहीं था कि हम्म। हाँ मेरे को सिंगल मेडिसिन ही करना है, क्या है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पेटेंट मेडिसिन पे स्टार्टिंग में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों? मैं तो कॉलेज से पढ़ के आई थी, कॉलेज में तो पेटेंट को थू थू करते हैं, टीचर्स तो टेक्स्ट बुक वाइज एग्जैक्टली। तो कराते हैं। इवन दो आई स्टडीड फ्रॉम बैक्सन, तो बैक्सन अपने IPD OPD में तो पेटेंट देते हैं, बट हमारा हम्म। जो पढ़ा रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिख के आ रहे हैं, वहां पे तो पेटेंट को ग्लोरीफाई नहीं करा जा रहा, ग्लोरीफाई क्या, सपोर्ट हम्म। भी नहीं करा जा रहा। एंड मैं पढ़ के ही फिर समझी कि जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कार्बन के प्रॉपर्टीज अलग हैं, ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज अलग हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज अलग हैं। सो इट इज सिमिलर दैट इन पेटेंट। अब आप देखोगे कंपनीज जैसे बीजेन की जो मेडिसिन बनती हैं, उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा होगा पहले,
लाइसेंस के लिए अप्लाई हम्म करने के लिए, अगर आप कोई पेटेंट प्रोडक्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके फॉर्मुलेशन का आप साइंटिफिक प्रूफ दोगे, जैसे हम स्कूल में करते थे या कॉलेज में करते थे कि अपैरेटस, देन प्रोसेस ऑफ जो स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम्म फिर हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, फिर उससे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, फिर हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से जो भी पेटेंट का कॉम्पोजिशन जो होता है, हमारा मेडिसिन पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वो उसका टेस्टिंग करा जाता है एंड वो हम्म साइंटिफिक प्रूफ की तरह प्रेजेंट करा जाता है कि जी इससे हमारे ये रिजल्ट निकल के आए, तो इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को इस बीमारी के लिए, इन सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम्स के लिए लाइसेंस चाह रहे हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का। अब क्या होती है यहाँ पे थ्योरी, क्योंकि देखो आप क्लिनिक में बैठ रहे हो तो आपको सब पता भी होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या मेडिसिन है और आप क्यों हेजिटेट नहीं करने चाहिए कोई भी मेडिसिन उठाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पेशेंट को ठीक करना हम्म है। इसलिए मैं ये पॉइंट बता रही हूँ कि पेटेंट का सिग्निफिकेंस कहाँ से आता है, कि क्यों पेटेंट उठाने से डरना नहीं चाहिए। मैं डरती थी बट अब नहीं डरती। आफ्टर वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैं अब नहीं डरती, क्यों, मैंने समझा और मैंने ट्रेनिंग देके वो समझाया भी, मुझे समझ में आया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तभी मैंने उसको समझाया आगे लोगों को कि हम्म पेटेंट को क्यों हम साथ में, हम वी कैन प्रमोट जेनेरिक्स, यस ऑफ कोर्स दे वर्क, पेटेंट आल्सो वर्क। क्यों, जब आपने वो एक एक्सपेरिमेंट करा, आपके पास एक एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक प्रूफ। यस इफ यू हैव अ साइंटिफिक प्रूफ क्या होता है, जो चीज आप रिप्रोड्यूस कर पाओ एंड वो हर हम्म बार सेम रिजल्ट दे। फेयर इनफ, दिस इज साइंस। साइंस में जितने भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट नाउ, it हम्म is reproducible and it will not change every time you do the same experiment, it will give you the same result. That is science, that is facts. तो वो फैक्ट प्रूव हो चुका है, hence proved। अब वो फैक्ट जो है वो साइंस का फैक्ट है, वो उस कंपनी का फैक्ट नहीं है। तो वो ओके एक्सपेरिमेंट आप अगर मेडिकल लाइसेंस के लिए दे रहे हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्शन के लिए दे रही है, इसलिए कई कंपनीज के मेडिसिन के कॉम्बिनेशन सेम होते हैं। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो मेडिसिन होती हैं, कई कंपनीज के सेम कॉम्बिनेशन मिलेंगे इस ड्रॉप्स में। गोल्ड ड्रॉप सबकी सेम होगी, बायो कॉम्बिनेशन सबके सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते। क्यों, एक बार जो चीज प्रूव हो गई वो चेंज नहीं होगी। अब वो कंपनी ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, वो तीनों कंपनीज का जो सेम मेडिसिन सेम फॉर्मुलेशन पे होगी वो सेम चलेगी। तो उसके बाद से पहले कंपनी ने साइंस एक्सपेरिमेंट करके लाइसेंस लिया एक स्पेसिफिक पेटेंट प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के लिए। उसके बाद से अगर कोई कंपनी वो सेम लाइसेंस चाहेगी सेम कॉम्बिनेशन पे, दे डोंट हैव टू गिव द साइंटिफिक प्रूफ। वो जो पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं वो रेफरेंस देते हैं पहले कंपनी का। क्यों, उनको दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, हम्म साइंटिफिक फैक्ट हेंस प्रूव्ड हो चुका है। तो वो जो पेटेंट अप्लाई करते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट के नाम का पेटेंट होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक बार एक कंपनी ने प्रूव कर दिया तो वो कॉम्बिनेशन उस कंपनी का पेटेंट नहीं होगा, सिर्फ नाम कंपनी का पेटेंट होगा। जो कॉम्बिनेशन है अगर वो हेंस प्रूव्ड हो गया तो वो साइंस का है, हम्म दैट बिलोंग्स टू साइंस, होम्योपैथिक साइंस, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाउ। एंड डॉक्टर हैनेमन ने भी एक नहीं, दो नहीं, 8-10 मेडिसिन ऐसी लिखी हुई हैं, खुद से प्रूव करी हुई हैं, विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स। Wiesbaden, spring water derived, multiple salts in it, multiple salts, spring water है, नेचुरल सोर्स से हम्म स्प्रिंग से वाटर लिया गया, तो उसमें तो मल्टीपल मिनरल्स हैं, फिर मल्टीपल उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, और हम्म हर एक मिनरल से हमारी अलग मेडिसिन है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन इन इट सेल्फ। सिमिलरली देर आर मेनी सच केमिकल्स जो अपने में कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। आप उनका केमिकल फॉर्मूले देखोगे तो उसमें अलग अलग केमिकल्स के आपको सिंबल्स दिखेंगे, और उन अलग अलग केमिकल से हमारी अलग अलग मेडिसिन ऑलरेडी हैं, तो वो भी तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन हुआ। हम्म At the end of the day, everything, we are biochemical, everything is chemical based, everything that is existence in this universe दैट is इज chemical केमिकल based, बेस्ड हम्म right? तो अगर हम पेटेंट बना रहे हैं
तो क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। हम्म तो वो जो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो जो भी सिम्टम्स देगा, तो वो हर बार सेम ही तो होंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो सेम होगा। तो पेटेंट से घबराओ मत, जरूरी नहीं हर केस में देना है, बट किसी केस में अगर आपको लग रहा है कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपके पेशेंट के सिम्टम्स को कवर कर रहा है, कि उस कॉम्बिनेशन का अगर 4 मेडिसिन हैं, चारों को अगर आप मेडिसिन को सिम्टम्स को कंबाइन करके जो कंप्लीट पिक्चर बन रहा है, उस कंप्लीट पिक्चर को अगर आप पेशेंट से मैच कर पा रहे, गो अहेड, व्हाई नॉट, प्रिस्क्राइब दैट पेटेंट एंड प्रिस्क्राइब इट विद फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, डोसेज पेशेंट के ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से dosage, and always look at the composition. Again, clinical tip, always if you are going for a patent, look at the combination, don't look at the name. ओके नाम कुछ भी कंपनीज, आप कॉम्बिनेशन देखो। यू आर अ डॉक्टर, वर्क लाइक अ डॉक्टर, थिंक लाइक अ डॉक्टर। ब्लाइंडली कुछ भी उठा के नहीं देना, नहीं तो पता चले आप कल को लुकोडर्मा के लिए लुकोरिया का कोई ब्रांड नेम वाली मेडिसिन उठा के दे दो, हम्म क्योंकि कई ब्रांड नेम्स लुकोडर्मा के लिए भी यूज करेंगे और लुकोरिया के लिए भी यूज करेंगे। तो रीड द मेडिसिन। एंड कई टर्म्स ऐसे हैं जो पेटेंट मेडिसिन पे डब्बा पे नहीं लिखे होते, क्योंकि वो डिजीज के नेम्स यूज करना अलाउड नहीं है मेडिको लीगली। ओके तो वहां पे तो फिर आपकी ये वाली नॉलेज ही काम आएगी जब आप कॉम्पोजिशन हम्म देखोगे। ऑलवेज थिंक लाइक अ डॉक्टर इन अ क्लिनिक, ऑलवेज थिंक लाइक अ डॉक्टर। ठीक है, थिंक दिस ऑल्सो covered almost, I think only take history, observe, correlate, differential diagnosis we've covered, and arriving at a vertical working diagnosis with management approach, that also we've covered. And again, केस को पहले तोड़ो, फिर जोड़ो और फिर होलिस्टिक सोचो। ठीक है, I like this jingle. It's making a यस jingle. हाँ यस, केस को पहले तोड़ो फिर जोड़ो, फिर एक होलिस्टिक अप्रोच बना के होलिस्टिकली सोचो कि कैसे आप हम्म उसको अपनी होम्योपैथी को क्लिनिकल नॉलेज के साथ करके, डायग्नोस्टिक्स के साथ करके, मैनेजमेंट के साथ करके आप क्या फाइनल वर्किंग कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ठीक, एंड then again, just last tips for young doctors, those who are younger than me, and someone would like to know, because experienced doctors के सामने तो हमारा कुछ भी नहीं है अभी एक्सपीरियंस। तो रीड केसेस, नॉट जस्ट योर, रीड योर केसेस ऑल्सो। अगर कोई केस ठीक हुआ है उसको भी पढ़ो, कोई केस ठीक नहीं हुआ उसको भी पढ़ो। रीड योर हम्म केस ऑल्सो, दूसरों के केस तो पढ़ो ही, खुद का भी केस पढ़ो। क्या दिया था, क्यों दिया था, क्या कुछ और कर सकते थे। अपना केस भी पढ़ो, दूसरे का केस भी पढ़ो, एंड दूसरे का केस भी अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दूसरे का केस दूसरे के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ते हैं। पहली बार उसके हम्म पर्सपेक्टिव से पढ़ो, दूसरी बार अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। इस वर्ल्ड में जितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, कोई दो होम्योपैथिक डॉक्टर सेम तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं करते तो आपका क्लिनिकल अप्रोच आपका रहेगा। हम्म You will be a different clinician from any other doctor on this planet. तो अपने आप को समझो, अपनी पहचान बनाओ, अपने स्किल सेट को समझो और उसे रिफाइन करते हैं, तभी आप एक अच्छे क्लिनिशियन बने। डे टू डे अप्रोच में यही है, कीप लर्निंग एंड हैव अ वेरी वेरी ब्रॉड माइंड, broadest mind you can think of. Then practice reflective thinking. Of course, after every case, I said, what did I miss? Do that. Discuss with seniors and mentors, and discuss with anyone and everyone possible. सबके साथ डिस्कस करें। डिस्कशन करोगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है किसी को कुछ सिखा भी दो, वो सीख ले, वो आपकी चेयर में हो उस दिन। तो घबराना नहीं है। I asked from my colleagues, क्योंकि as I said, no family background, and रेगुलर प्रैक्टिस में कई ऐसी चीजें होती है, जैसे मदर टिंचर्स। कॉलेजेस में मदर टिंचर्स को भी प्रमोट नहीं करा जाता कि आप मदर टिंचर यूज करो। सो वो कहाँ से सीखोगे? क्लिनिकल प्रैक्टिस से सीखोगे, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से सीखोगे। सीनियर से पूछो जो मदर टिंचर्स प्रैक्टिस करते हैं, कैसे देना है। मदर टिंचर देखो, आपको लिक्विड फॉर्म में देना है कि 1x टैबलेट्स के फॉर्म में देना है। लोअर सैचुरेशन टैबलेट्स को एक्सप्लोर करो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बट अब मुझे
सब कुछ पता है कि क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। अब उस टूल को आपने कैसे यूज करना है, दैट इज योर स्किल, दैट इज योर आर्ट। आप चाहो तो सिंगल मेडिसिन भी दे सकते हो, आप चाहो तो एक कॉम्बिनेशन बना के भी दे सकते हो। यू गिव मदर टिंचर टैबलेट, you give constitutional, you give therapeutic. And don't be ashamed to say what you use. कि वो आपका आर्ट है, वो आपका स्किल है, आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, देन वाई बी एम्बेरेस्ड, वाई बी अशेम्ड ऑफ इट। अगेन, नो टू होम्योपैथ्स प्रैक्टिस से, नो टू होम्योपैथ्स। होम्योपैथी में बहुत डाइवर्सिटी है एंड हर कोई एक दूसरे को एनिमी की तरह देखता है, नहीं देखना चाहिए। हर डॉक्टर यही चाहता है उसका पेशेंट ठीक हो। और क्लिनिक में बैठ के कभी दूसरे डॉक्टर के नेगेटिव नहीं बोलना, दूसरे डॉक्टर के लिए नेवर अनदर क्लिनिकल। पेशेंट्स आके बोलते हैं कि जी सेम एरिया में उनको दिखाया था, वो तो ऐसे दे रहे हैं, या उन्होंने तो ये करा हमारे साथ, वो करा। जस्ट से नहीं, हर डॉक्टर का इंटेंशन ठीक होता है, हर डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक ही करना चाहता है। उनको भी एक्सपीरियंस है, उनको भी नॉलेज है, कोई बात नहीं, हर केस कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी से चूक हो सकती है, बट वो डॉक्टर की गलती इंटेंशन वाइज नहीं है। एक सद्भावना आनी चाहिए कम्युनिटी, वो कम्युनिटी का पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। इवन दो अनदर डॉक्टर इज सेइंग इल अबाउट यू इन द सेम लोकेलिटी, व्हाई? बिकॉज everyone tries to push you down because they have a family to feed. Many people do that, but you don't have to be that person. If you want to practice in the long run, आपको क्लिनिक चलाना है, लाइफ लॉन्ग चलाना है, मरते दम तक चलाना है, so don't be that person. Build each other up. Don't break others down just to keep yourself running. वो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं। जो भी करो लॉन्ग रन के हिसाब से करो। दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड पेशेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं बोलो, ठीक है जी कोई बात नहीं। अगर आप पूरे ट्रस्ट से नहीं लोगे तो आप ठीक भी नहीं होगे, तो आपको जहां ट्रस्ट है आप वहां से ले। मुंह नहीं बनाना पेशेंट के आगे। सैड देखो, सैड तो फील होंगे बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी स्टिल लर्निंग, वी आर यंग, सो यू आर अलाउड टू फील। हम जब काउंसलिंग पेशेंट को देते हैं तो हम खुद भी तो अप्लाई करें। वी आर अलाउड टू फील, वी आर अलाउड टू हैव इमोशंस, वी आर अलाउड टू लर्न, वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। तो डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करते करते खुद डिप्रेस नहीं, नहीं होना। वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिप्रेस नहीं हो गए, आप उससे ज्यादा फील करो एंड मूव आउट ऑफ इट, बिकॉज अगेन बीइंग अ गुड क्लिनिशियन यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड अगर आपको बाकी चीजें कॉम्प्लिकेट कर रही है लाइफ में, आप क्लिनिक में बैठ के प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं सोचोगे, यू माइट मिस समथिंग, समथिंग मेजर। तो अपने पर्सनल लाइफ को क्लिनिक में लेके नहीं बैठना, नेवर। वो फायदा नहीं, वो नुकसान करेगा, आपका भी पेशेंट का भी। Then whatever you learn, if you have some pointers, you can maintain a case diary or an observation diary कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, किस किस के लिए आपने क्या, अगर टेस्ट हैं, जैसे आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बिल्डअप हो रहा है पेशेंट्स में, उसके लिए, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट जनरल फिजिशियन के पास पहले आएगा, फिर उसको हम स्पेशलिस्ट के पास अगर भेजेंगे तो भेजेंगे। तो डायबिटीज का पेशेंट आया है, कहीं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है कि आप मेडिसिन देते जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, पेशेंट डाइट भी मैनेज कर रहा है तो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, आप कहाँ चूक रहे हैं? तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैनल कराओगे, उसमें भी आप सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं चेक कराओगे, आप फास्टिंग इंसुलिन नहीं चेक कराओगे। होमा IR इंडेक्स नाम का टेस्ट होता है, बीटा सेल फंक्शन का टेस्ट होता है। बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाते हैं, आप ये पता करोगे कि पैनक्रियाज के सेल्स ठीक ठाक हैं कि नहीं है, वो बीटा सेल फंक्शन बताता है। होमा IR इंडेक्स बनाते हैं कि जो इंसुलिन बन रहा है बॉडी उसको यूज कितना कर पा रही है। मैम ये वाला टेस्ट कौन सा बताया अभी आपने? होमा IR इंडेक्स होता है एक, एंड बीटा सेल फंक्शन होते हैं, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। ओके। ठीक है, तो आप पूरा पैनल कराओगे, पूरा सेट कराओगे पेशेंट का, उससे कंप्लीट पिक्चर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जब तक नहीं खरीद के लाओगे आप, तब तक आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं सप्लाई हो पाएगा। नहीं मिलेगा। तो लोगों को ये मत सोचने दो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये सब नहीं सोचते। लोगों की सोच बदलो, जब अपनी सोच बदलोगे तभी लोगों की सोच बदलो।
उनके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर मीठी गोली वाले पुड़िया वाले डॉक्टर ही हैं। अभी भी टाइम लगेगा उनकी सोच बदलने। Government is helping, our colleges are helping, our system is changing. We need to take that change forward to the masses that no, हम सिर्फ पुड़िया वाले डॉक्टर नहीं, हम डॉक्टर हैं. Homeopathic is a different thing, and doctor, we are a doctor, we are a general physician, we do the screening. Think like a doctor, act like a doctor, prescribe like a doctor, tell your patient management like a doctor. Patient को योगा बोलो, आयुर्वेद बोलो, यूनानी बोलो, नेचुरोपैथी बोलो, पंचकर्मा बोलो, जो बोलना है बोलो. एलोपैथ्स भी तो बोलते हैं. एलोपैथ्स भी तो अपने प्रिस्क्रिप्शन में हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन भी लिख के देते हैं. इवन दो स्पेलिंग उनको कुछ भी नहीं आती, बट वो लिख के देते हैं. जब वो इंटीग्रेशन में जा रहे हैं तो हम भी असिस्टिव इंटीग्रेशन में जाते हैं. ठीक है, एलोपैथी नहीं लिखते हम, बट वी कैन रेफर द पेशेंट. डोंट राइट इट फॉर योरसेल्फ इफ यू आर नॉट श्योर. रेफर. फिजियोथेरेपी के लिए रेफर करना है, नहीं पता आपको एग्जैक्ट कौन सी फिजियोथेरेपी की आपको टेक्निक बोलनी है पेशेंट को, सोना बोलना है नहीं बोलना है, थर्मल थेरेपीज में क्या बोलना है, वैक्स थेरेपी बोलनी है नहीं बोलनी है, तो कुछ नहीं, फिजियोथेरेपी सेंटर में रेफर करो, पेशेंट का डायग्नोसिस लिख दो पर्चे पे एंड नीचे लिख दो प्लीज रेफर एज पर योर असेसमेंट. This is the diagnosis and please refer the patient therapies and exercises as per your assessment. So आप छोटे नहीं, you will be the bigger person here only. Why? Because physiotherapist will feel that you are respecting their choice of treatment as well. Even though आपको नहीं पता, आप इसलिए लिख रहे हो. But उससे क्या फायदा होगा? पेशेंट आएगा, बताएगा, आप पूछोगे हाँ जी उन्होंने क्या क्या आपको फिर रेफर करा असेस करके, तो आप सीखोगे अच्छा ये डायग्नोसिस था, फिजियोथेरेपिस्ट ने ये लिखा है, अच्छा आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि इस केस में हम ये फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स लिख के दे सकते हैं पेशेंट को. Okay. So you learn. Don't think that you are the smaller person over here. No, you are a learner at the end of the day. जिससे सीखना सबसे सीखो, जितना सीखना उतना सीखो. Then yes, the last point, stay humble. क्योंकि आप सबसे सीख रहे हो तो हम्बल रहना. एक आप में हम्बलनेस रहेगी तभी आप आगे एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे ये प्रोफेशन आगे सस्टेन कर पाओगे. बी हम्बल एंड बी ह्यूमन. Both things. To be a doctor, to be a good clinician, you have to be humble and you have to be a human. Keep yourself in the patient's shoes. If you see someone in that much pain, if the patient is being irritated, अगर आपको उतना पेन हो रहा होता तो आप कितने irritated होते? That is why हमेशा यही सोचो, पेशेंट इम्पेशेंट होगा क्योंकि वो डिस्ट्रेस में है, वो तकलीफ में है. किसी को शौक नहीं है डॉक्टर के पास आके बैठने का. एक हिस्टेरिकल पेशेंट को भी शौक नहीं है डॉक्टर के पास आके बैठने का. उसका हिस्टीरिया उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास आ रहा है. ये सोचो, एक हिस्टेरिकल पेशेंट को भी शौक नहीं है डॉक्टर के पास आने का. उसका हिस्टीरिया उसके खुद के कंट्रोल में नहीं. वो उससे छुटकारा चाहता है. So be human and be humble. I think that is all. And clinician की सोच, practice, observation and open mind से ही develop होती है. This is the last statement I've written. Is it? Any other thing you want to ask? Also, yes, we can treat surgical patients with homeopathy, but with correct management. Many surgical cases can be managed, but with correct management. उसके लिए आपको क्लिनिकल नॉलेज अपना ब्रॉडन करना पड़ेगा. मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना कभी नहीं बंद करना पड़ेगा. जैसे अगर किसी को बार बार सुसु आ रहा है, एनी फीमेल पेशेंट इफ सपोज, एंड डायबिटीज चेक करा लिया, कंट्रोल में करा लिया, ठीक है, सब ठीक है, अभी भी सुसु आ रहा है, क्यों? फीमेल्स में पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज.
आप उन्हें कुछ भी मेडिसिन नहीं दोगे, उन्हें बोलोगे केगल एक्सरसाइजेस करो, दिन में जितनी बार करो उतना कम है। हम्म। हफ्ते भर में पेशेंट आपको बोलेगा बहुत इंप्रूवमेंट है। क्योंकि मसल्स की ट्रेनिंग के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स की ट्रेनिंग के लिए आपको मेडिसिन नहीं देंगे। दवाई नहीं लेते। हम्म। जिम जाते हैं मसल की ट्रेनिंग के लिए ना, वहां पे जाके एक्सरसाइज करते हैं तो मसल की ट्रेनिंग होती है। तो आप केगल एक्सरसाइज बोलोगे तो पेशेंट का अपने आप सुसु का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सिमिलरली इन मेल्स ऑल्सो, अगर किसी को प्रोस्टेट का इशू है, बीपीएच है, तो आप आराम से हम्म। उसको केगल एक्सरसाइजेस भी बोलो साथ में, उसको बीपीएच में रिलीफ मिलेगा और ज्यादा। मेडिसिन तो दोगे ही आप, हाइपरट्रोफी है, बिनाइन है, या वट एवर द कंडीशन इज इन बीपीएच, वट एवर केस प्रेजेंटेशन इज देयर, आप केगल एक्सरसाइजेस मेल्स में भी बोल सकते हो। क्यों, पेल्विस तो दोनों में है, पेल्विक मसल्स तो दोनों में है, तो उसमें भी हेल्प करेगी। रिकरेंट यूटीआई है, रिकरेंट रीनल कैलकुलाई है, एनीवे डिसयूरिया अगर आ रहा है, पॉलीयूरिया आ रहा है, केगल एक्सरसाइजेस वर्क इन ऑल केसेस। तो मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। हम्म। अगर आप मैनेजमेंट नहीं सोचोगे, पेशेंट को नहीं बताओगे, तो पेशेंट दवाइयां ही दवाइयां लेता रहेगा। अब उस दवाई से हो सकता है कंडीशन ऐसी हो कि उसमें दवाई देनी ही नहीं, मैनेजमेंट ही बोलना है। हम्म। डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड। यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं मैम, आई एम तो मतलब सो मच, आई डोंट वांट यू टू stop anywhere. I feel like कि आप समझाते रहो because it seems as if we have ocean of knowledge with you. And even I always think like this that being a doctor, you have already been blessed to belong to such kind of fraternity. यस। And if you're keeping yourself bounded just because you have a particular tag associated to, yes, I am a homeopath, so I'm just going to follow my pathy. I'll be not open to other resources. That is absolutely wrong in my perspective, not just as a homeopath, but being a general doctor itself. यस। तो वही आपका वाला कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंड होना, being unprejudiced, यस। and even I believe that staying humble, staying grounded and humanitarian basis पे serve करना, that is the ultimate blessing that we are blessed with. Yes, surely. You have to acknowledge that and acknowledge Hmm. it every day. That is what takes you ahead. It was so like it was like a meditation to my ears. Thank you so much. That is so humble for you to say. No, no, no. I enjoy this because I enjoy homeopathy. I enjoy my profession. So I'm just happy. I'm happy in my नहीं chair. मैम, I'm happy बहुत in my cabin. I'm happy talking inspiring. It about was it. very much inspiring. I'm very much touchwood satisfied with whatever place I am at, and I enjoy my profession Hmm. thoroughly, wholeheartedly. Well, ma'am, we'll wait for if anyone has any questions. Sure. The chat box is open. You may ask. I don't have. Is I think a batchmate of mine is also watching. Hi, Vishali. Ma'am, one question. Yes, Did you complete your graduation from Delhi? Jackson. Oh, back since. I used to Nice, study. nice. I used to study in class. क्लास में ध्यान देती थी, लास्ट बेंच पे भी अगर बैठती थी तो मैं ध्यान देती थी, और माय टीचर्स न्यू दैट आई एम लिसनिंग। सो घर जाके पढ़ो ना पढ़ो, क्लास में ध्यान दे लो, वो भी बहुत हेल्प करता है। हम्म। काफी इंफॉर्मेशन रिटेन हो जाती है क्लास में भी। कि हमको डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं हम्म। सामने। क्लास में सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
We are blessed to have teachers that are doctors themselves. They're living Hmm. that life every day. सबसे सीखो. And I'm the Ma'am, first there generation they में होता है. are. मुझे ड्राम का नहीं एग्जैक्ट समझ में आता था. मतलब थ्योरी में आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, बट प्रैक्टिकल नॉलेज में थर्ड फोर्थ ईयर तक जाके कुछ समझना आना शुरू हुआ था कि प्रैक्टिकली शुरू कैसे होता है. अप्लाई करूं इसको. क्या ग्लोब्यूल्स, क्या साइज कैसे बोलेंगे, ऑर्डर कैसे देना है, ड्राम्स में चाहिए कितने ड्राम्स की वैल्यू होती है, कैसे चाहिए, ड्रॉपर में देना है, अच्छा ग्लोब्यूल्स में प्रैक्टिस करना है कि लिक्विड में प्रैक्टिस करना है, अदर Hmm. टिंचर्स क्या होते हैं समझ नहीं आया था बिल्कुल भी. अच्छा इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी दे सकते हैं हम पेशेंट को डायरेक्टली. तो आई हैड वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस दैट आई टुक अ फ्रेंड ऑफ माइन आई सेड कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, एंड ही वाज अ जनरेशनल फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ होम्योपैथ्स फ्रॉम द फैमिली. Doctor. So I said, ki, yaar, please, I will ask you silly questions, but I really want you to answer them every time I ask you anything. And then I started with my silly Okay. questions. I learned everything. अच्छा ड्राम क्या होता है, क्या साइज होता है, मुझे एक बार फोटो भेजी वो, क्या कंपैरिजन रहता है. कि जब पढ़ रहे थे तब तो मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकली तो समझ Hmm. ही नहीं आ रहा था. अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम कैसे एक अलग अलग बीट्स को एक माला में कैसे पिरोना है, अलग अलग बीड्स में एक सेल हो रहे थे, बट अब उनको कंबाइन करके कैसे खिचड़ी बनानी है और वो खिचड़ी टेस्टी बननी चाहिए, वो समझ नहीं आ रहा था. So I used to ask silly questions to my friends, to my batchmates, to my teachers. सबका सर खाया, but पूछा. I was never afraid to ask questions. Never. बोल दो, डिस्क्लेमर दे दो कि you might think my question is silly, but I'm going to ask it anyway. Ask. Ask your heart away, ask your brain away. This is how we learn. Okay. डोसेज कैसे देना है, पोसोलॉजी पोसोलॉजी भी पेपर पे पता थी थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली पोसोलॉजी कैसे अप्लाई करना है नहीं पता थी. अब पोसोलॉजी वर्ड भी याद है, पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट वर्ड याद है. क्यों, पढ़ाई कर ली थी ठीक से, प्रैक्टिकल अप्रोच Hmm. बाद में सीखी, तो वो प्रैक्टिस से याद है. नो क्वेश्चंस. No, ma'am. मेरे तो अभी तक तो नहीं है. I have been searching for questions here by the participants. They have been complimenting you. Of course, the session was so nice. थैंक यू, थैंक यू. So, maybe wind up here, ma'am. या श्योर, श्योर. Okay. Okay, ओके. ma'am. So, thank you, everyone. So, we would like to end the session here and do check out ma'am's page because I really liked each and every tip that she gave. And you can rewatch this video if you missed anywhere. Do rewatch. I would highly recommend. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड गुड नाइट, हैव अ गुड टाइम, एंड कीप लर्निंग. Thank you, ma'am. वेलकम. थैंक यू.